Good morning, dear parents and my dear students. I hope you all are good and safe at home. Dear students, have you remembered that what we have done in previous class? Yes, you are right. We have done division of 4-digit number by 2-digit number without remainder. Means remainder was 0 there. So before to be moving towards today's topic and aim, let me ask ki have you achieved our aim of previous class? For that, what I have done, I have written one question here: 8032 divided by 16. Now what will you do? You just write down this in your notebook and divide this number by 16, and you have to verify your answer also that we have used yesterday. Means in the previous class we have used dividend is equal to quotient multiply by divisor. We have used this. So just pause the video, solve and verify your answer. I think you have done it. So let us check, is the answer right or wrong. Just look here. हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 16 की टेबल लिखते हैं हम. ठीक है. मीन्स जो भी हमारा डिवाइजर होता है, देयर 16 इज डिवाइजर, 8032 इज डिविडेंड. सो वी विल राइट डाउन टेबल ऑफ डिवाइजर. 16 की टेबल लिखो सबसे पहले. रिटर्न. सबसे पहले हम इनको कंपेयर करते हैं. यहाँ पे कितने डिजिट है? 2. यहाँ पे 2 डिजिट है. ठीक है. मीन्स दीज 2 डिजिट आर मेकिंग 80. 80 इज ग्रेटर देन 16. तो हम यहाँ देखेंगे क्या 16 की टेबल में 80 आता है कहीं पे? यस, आता है जी. 16 5 जा 80. सो वी हैव टू सबट्रैक्ट, 0 इज लेफ्ट. अब 3 ऊपर से आएगा. मैंने बताया था आपको, व्हेन वी आर टेकिंग अ नंबर फ्रॉम अप साइड हियर, तो इफ इट इज स्मॉल देन द डिवाइजर से अगर छोटा रह जाता है तो हम यहाँ ऊपर 0 पुट करते हैं. एंड आई टोल्ड यू वन अनदर वे, इफ इट इज स्मॉलर देन 16 0 पे भी आप लेके जा सकते हो. And after that you can put 0 here. Then 2 comes down, this become 32. Now it is greater than 16. तो हम देखेंगे कि क्या 16 के टेबल में 32 आता है? हाँ जी आता है. Where? 2 जा पे. तो 16 2 जा 32. Remainder is 0. How can we verify our answer? We are having one formula. Dividend is equal to quotient multiply by divisor. Quotient कितना आया है? 502. Multiply by divisor कितना है? 16. And I told you before to be that multiplying directly we have to use this column method of multiplication. Means हम multiplication का ये column method use करेंगे, then we will divide multiply. तो मैंने multiply किया 16 से और मेरा 8032 आया, which was the dividend. 8032 which was our dividend. It means जो मेरा डिवीजन के बाद जो क्वोशिएंट आया है that is correct. In this way we can verify our answer. I hope you have understood and your answer is same. Dear students, let us move in towards today's topic. What is today's topic? Dividing with remainder. Means yesterday we did dividing without remainder. आज remainder क्या होता है? The leftover part in division. Yesterday also I told you. ठीक है. तो one question यहाँ, one more thing. Today's resources, you have to arrange 2 blank cards on which you will write down numbers and 1 dice like this. ठीक है. You will arrange 1 dice and 2 cards on which you will write down numbers. So please pause the video and arrange these numbers for the today's activity. Forward. One question is for you. Yes, tried to put, ध्यान से सुनना. Yes, tried to put 1678 books equally into 3 cupboards. ठीक है. However, he could not arrange all the books in the cupboard. One book was left over. उसने अरेंज किया अलमीरा में, कबर्ड में रखने के लिए. ठीक है. 3 कबर्ड थे वहां पे, उनके अंदर इन बुक्स को, बट he was not able to arrange all the books into cupboard. Why do you think? Because one was left. Why do you think that he could not able to arrange all the books into cupboard? So please think and share your answer with your parents. Yes, I think you have shared your answer with your parents. Because 1678 is not complete divided by 3. Let us check.
कैसे हुआ है ये देखो, मैंने क्या किया 1678 को दिस इज आवर डिविडेंड 3 से क्या किया डिवाइड किया। लेट अस सी कैसे करते हैं। सबसे पहले 3 की टेबल लिखेंगे, 3 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। पहले वन डिजिट को कंपेयर करेंगे, 1 इज स्मॉलर देन 3 तो 15 मीन 16 हो जाएगा। 3 की टेबल में 16 आता है, नो 5 जब कितना आता है 15, देन 7 कम्स डाउन, अगेन इसके 15, 2 इज लेफ्ट, 8 9 जा पे 27। This is our remainder. That's why what is the aim today? This is our remainder. ठीक है, तो आज हमारा जो डिवीजन होगा जिसमें हमारे टॉपिक का है डिवाइडिंग विद रिमाइंडर्स, तो सिमिलरली टू डिवाइड 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर विद रिमाइंडर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, इट इज आवर टुडेज एम कि हम एक 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे 2 डिजिट नंबर से विद रिमाइंडर। जैसे हमारा इसके अंदर 1 रिमाइंडर रहा है, ऐसे ही कुछ ना कुछ उसमें भी रिमाइंडर रहेगा हमारा, ठीक है, विद लॉन्ग डिवीजन मेथड, द मेथड विच वी हैव यूज्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। आई ऑल आर अवेयर व्हाट इज द एम ऑफ द डे? यस yes students, before to be moving towards our activity section I will give one demo। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक नंबर लिखा है 3159, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि भैया हाउ कैन आई फाइंड आउट माय डिवाइजर, डिवाइजर तो गिवन ही नहीं है। तो इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू यू हैव टू अरेंज वन डाइस, सिमिलरली आई हैव आल्सो अरेंज्ड वन डाइस, ठीक है। लेट अस सी कैसे हम इससे अपना डिवाइजर बनाएंगे, मीन्स बाय प्लेइंग, ठीक है। सो आई विल रोल द डाइस, whatever will come, then we will find out our divisor. So now to find out our divisor, what I will do, I will roll the dice. I have rolled out it. What comes? 4. Note down it. Then again I have to roll it. What comes? 1. Means 1 time 4, 1 time 1 has come. जैसा कि मैंने डाइस को रोल किया तो एक टाइम 4 आया है, एक बार 1 आया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनसे जो छोटा नंबर फॉर्म होगा ना हमारा, ठीक है, हमें छोटा नंबर बनाना है इनसे। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट? आई थिंक व्हेन आई विल मेक दिस विल बी द, दो ही नंबर बनते हैं, एक तो 14 बनेगा, एक 41 बनेगा। आउट ऑफ दिस टू 14 इज स्मॉलर, तो हमें छोटे से छोटा नंबर बनाना है जब हम 2 बार डाइस को रोल करेंगे और छोटे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे मैंने डाइस को रोल किया है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज वी हैव टू डिवाइड बाय 14, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप सेम 14 की टेबल लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 14। I have written table of 14 up to 10 जा। What is the next step? Next step, यहाँ पे 14 है, 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट को देखेंगे, 31 है, तो 31 इज ग्रेटर, तो हम 14 की टेबल में ढूंढेंगे 31 है कहीं पे, नहीं भैया। व्हाट इज कम? यहाँ पे है 28, यहाँ पे 42, हमें स्मॉल, इससे स्मॉल और क्लोजेस्ट लेना है, दैट इज 2 जहाँ पे कितना हो जाएगा 28। व्हाट विल बी लेफ्ट? 3 लेफ्ट। Now 5 comes down, it becomes 35। क्या 35 आता है? No, again it will go on 2 जा 28, then again I have to subtract, 7 is left, then 9 comes down। क्या 79 आता है? No, but इसके क्लोजेस्ट कौन सा आता है? इसे छोटा और क्लोजेस्ट 70, 5 जा पे 70,
9 is left, so it is our remainder. In the previous class, what we have done that how can we verify our answer. So right now also हम अपना आंसर वेरीफाई करेंगे, बट उसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है. व्हाट इज दैट चेंज, ध्यान से देखना. यस्टरडे व्हाट वी डिड, हमने किया था जो डिविडेंड था वो किसके इक्वल था, क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर. यहां तक था हमारा इन द प्रीवियस क्लास. बट टुडे in the previous class what was there, remainder was 0. that's why we were not putting. यहाँ पे रिमाइंडर बचा है हमारा समथिंग, तो क्वोशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करो और उसमें रिमाइंडर प्लस कर दो. मीन्स क्वोशेंट कितना आया है 225, डिवाइजर कितना है 14, रिमाइंडर कितना है 9. तो पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 225 को 14 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे. वट एवर द आंसर विल कम, उसके अंदर हम 9 प्लस करेंगे. तो 4 से करते हैं. 4 5 जा 20, 2 विल बी कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 1 विल बी कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9. इट कम्स. नेक्स्ट करते हैं 10 से करेंगे तो यहाँ पे 11 पे 0 आ जाएगा. देन 5 2 2 प्लस दिस 0 5 1 1 विल बी कैरी, देन 3 मीन्स 3150 हैज कम. तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन करो, क्वोशेंट और डिवाइजर की जो रिमाइंडर है इसमें क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे. मीन्स 3150 के अंदर रिमाइंडर प्लस कर दो. व्हाट कम्स 3159. आई थिंक दिस वाज आवर डिविडेंड. यही हमारा डिविडेंड था. इट मींस माय आंसर इज करेक्ट. इनका कितना आया मेरा 3159. दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस. सो एक नई चीज है रिमाइंडर. क्यों? बिकॉज रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 नहीं है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे किया है. सो प्लीज बी रेडी विद द रिसोर्सेज. नाउ इट इज योर टर्न. स्टूडेंट्स इट्स योर टर्न. व्हाट आई हैव रिटन हियर, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था 2 कार्ड चाहिए ब्लैंक, मीन्स जिसपे हम नंबर लिखेंगे लाइक दिस. तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 2 नंबर लिखे हैं 4567, 8957. ये रहे. ऑन वन कार्ड आप एक कार्ड पे ये लिखोगे ए, दूसरे कार्ड पे ये लिखोगे बी. उसके बाद आपको क्या करना है, आई सेड 1 डाइस ऑल्सो. उसके बाद आप डाइस लोगे, डाइस को रोल करोगे. ठीक है, आपको 2 बार रोल करनी है डाइस. 2 बार रोल करोगे. दोनों बार में अगर आप जो नंबर आएगा उससे आपको छोटे से छोटा नंबर फॉर्म करना है. ठीक है, अगर सेमी नंबर आता है तो कोई बात नहीं, फॉर्म नंबर फ्रॉम दैट ऑल्सो. और जो भी आपका छोटा नंबर फॉर्म होगा उससे एक बार इसको डिवाइड करना है, एक बार इसको डिवाइड करना है. आई थिंक आपको एक्टिविटी की प्रोसेस समझ में आ गई होगी. जस्ट राइट डाउन दीज ऑन द कार्ड्स. ठीक है, उसके बाद आप डाइस को 2 बार रोल करोगे. डाइस पे जो भी हमारा नंबर आएगा उससे आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे 2 डिजिट का, जिससे 1 बाय 1 इनको डिवाइड करोगे एंड यू विल सोल्व दिस इन योर फेयर नोटबुक. So please pause the video, write down this number and do the activity. Yes, I think you have done it. और might be mostly students का एक दूसरे से vary करेगा. ठीक है, तो similarly when I rolled the dice in this, तो मैंने find out किया मेरा दोनों बार 1 आया and I found the number 11. I think आपने भी ऐसे ही कोई छोटा नंबर फॉर्म किया होगा. किसी का 12 है, किसी का 45 भी आया होगा, किसी का 66 भी आया होगा, might be किसी का 56, ऐसे नंबर आए होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से. When I divide it, I find out this is my quotient and remainder. And what is the best about remainder? रिमाइंडर के बारे में बेस्ट क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है. ऑलवेज कीप दिस माइंड. रिमाइंडर कभी भी हमारा डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा. हम तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि यहाँ पे सिर्फ अकेला जो रिमाइंडर रहता है
वो डिवाइजर से छोटा ना रह जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, वेरीफाई किया अपना आंसर, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इनसे मैंने अपना वेरीफाई किया। पहले क्वोशिएंट 415 आया है और 11 मेरा डिवाइजर है, इनको मल्टीप्लाई किया मैंने, मेरा आया 4565 और इसमें 2 को प्लस करेंगे तो 4567 विच वाज माय डिविडेंड। यस, इन द सिमिलर वे इसी 11 से मैं इसको भी डिवाइड करता हूं एंड आई कैन फाइंड आउट माय आंसर। सबके वेरी करेंगे बट द प्रोसेस टू वेरीफाई आवर आंसर हमें इजीली पता लग जाएगा हमारा जो क्वेश्चन आया है इट इज करेक्ट और रॉन्ग। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ as we have done division, we have done activity, now one question for you, how can we divide a 4-digit number by a 2-digit number? Means what are the steps to divide the numbers? And one more thing, how can I verify my answer? Just to be think and share your answer with your parents. You are right, to divide a 4-digit number with 2-digit number सिमिलर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनको ऐसे डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम जो हमारा डिवाइजर होता है उसके मल्टीपल लिखते हैं, हम उसकी टेबल राइट डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आइदर इक्वल और स्मॉलर नंबर देखते हैं और ये स्टेप्स हमारे तब तक चलते हैं जब तक कि हमारा जो लेफ्ट ओवर पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा डिवाइजर से छोटा ना आ जाए। ठीक है, मींस जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो इन द सिमिलर वे अदर क्वेश्चन में भी हम तब तक जाते हैं जब तक हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। एंड टू वेरीफाई द आंसर, टू क्रॉस चेक द आंसर इन डिवीजन, सिंपल सी बात है, आप क्वोशिएंट को और डिवाइजर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर, पहले क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करो बाय यूजिंग दैट कॉलम मेथड और जो भी आंसर आए आपका उसके अंदर रिमाइंडर को प्लस कर दो। इफ योर आंसर विल बी इक्वल टू द डिविडेंड इट मींस योर डिवीजन इज करेक्ट, इफ नॉट you have made mistake somewhere, then you have to repeat that division part again so that you can find out your answer. Students, now one more question for you. आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है। How can you divide the difference of 7890 and 1290 by 15? मतलब आप इनके डिफरेंस को 15 से कैसे डिवाइड करोगे? So please pause the video and try to solve it. I think you have done it. अब देखो कैसे किया है कि डिफरेंस मतलब हमें माइनस करना है इन दोनों को, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, तो हम पहले इसको माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट किया हमने, क्या किया, मेरा आ गया 6600 सब्ट्रैक्शन के बाद। हमें इनका डिफरेंस होता क्या है, आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद 15 से मैंने इसको डिवाइड किया, 15 की टेबल लिखी एंड देन आई यूज द डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, सिमिलरली दे कैन गिव अस सम, एक वर्ड होता है दे कैन गिव, इन प्लेस ऑफ दिस माइट बी दे कैन गिव सम आल्सो। ठीक है, सम मतलब एडिशन, तो वहां पे हम क्या करें, सम मतलब आंसर ऑफ एडिशन, तो अगर यहाँ पे सम गिवन होता तो हम इनको प्लस करके फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको हेजिटेट नहीं होना है, अगर जैसे हाँ हाउ कैन यू डिवाइड डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, और अगर सम है तो पहले नंबर्स को प्लस करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। So now it's reading time. What will you do? You have to open page number 21 of your content book and here is given lesson 3 dividing with remainders. You will read this. When the dividend cannot be divided equally or is not exactly divisible by the divisor, we get a remainder which is less than the divisor. In such cases, when there is a remainder, we verify our answer by using the formula quotient multiply by divisor plus remainder. इनका जो टोटल आंसर आएगा that will be equal to dividend.
Let us divide a 4-digit number by a 2-digit number and verify our answer. They gave us one example, 6538 divided by 12. सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, 5 पे जाएगा, then 5 will be left, 3 comes down, then 12, 4 the 48. Similarly here is remainder is left 10. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे टू वेरीफाई आवर आंसर. क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर जो कि इसके डिविडेंड के इक्वल आएगा. मीन्स 544 जो हमारा यहाँ पे क्या आया था, क्वोशिएंट आया था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और फिर उसके अंदर रिमाइंडर क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे. इट शुड बी इक्वल टू द डिविडेंड. सो प्लीज रीड पेज नंबर 21. Now it's time for the assessment. You have to open page number 19 of your book, workbook, and you have to do S3 dividing with remainders. First you have to do this 4 digit को 1 digit से करोगे, then you will solve it. Look at the third question. Divide the sum. सम मतलब हमें पहले इनको ऐड करना है, उसके बाद 22 से डिवाइड करना है. So please pause the video and solve these 3 questions within 10 minutes. So please dear parents, assess your word कि have we achieved our aim or not. So please pause the video and do it. So now it's time for the homework. On page number 23 there is given lesson 3 dividing with remainders. They have given us 3 questions. You will solve these 3 questions in your fair notebook. What is homework today? Do lesson 3 block 4 of content book, page number 23 in your fair notebook. Students, I hope जिस एम को हम अचीव करना चाह रहे थे we have achieved. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को दोबारा से देखना so that आपका कंसेप्ट क्लैरिफाई हो जाए. Otherwise you can contact your teachers for any doubt, any queries. One more thing, you have to do your work yourself so that आपके पेरेंट्स भी ये कंफर्म कर लें कि हमारे बच्चे का जो टॉपिक था, जो एम था, वो क्लैरिफाई हो चुका है. सो प्लीज डू योर वर्क योरसेल्फ. टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एट होम. थैंक यू.